Good afternoon, students. Our next topic is microbes in sewage treatment. There is a wastewater generated every day in every city and town. It contains also human excreta. This municipal wastewater is called sewage. It is wastewater is human excreta, we call it sewage. It contains organic matter and microbes. These are pathogenic, means causes many diseases like cholera. When this is discharged into natural bodies like river and streams, it is directly discharged, means it is not treated. It means it is not treated. इनू treat नहीं किया जाता, इनू clean नहीं किया जाता. It is directly discharged into our natural water bodies. It pollutes these water bodies and causes many diseases. The problem causes many diseases the person that are living near these water bodies. So we have to, first of all, we have to treat this water. This is done in sewage treatment plants that are called STPs. How can we treat the waste water? So first is called the primary treatment. This is done by heterotrophic microbes. All the bacteria or all the organism or all microbes that help is heterotrophic, that cannot make their own food. So first is the primary treatment. In primary treatment, first comes the physical removal. Physical removal of the large and small particles. चाहे वो large ते small particles ने, like we can say water bottles ने, कोई stones ने, पत्थर वगैरह ने, that is a physical removal. Physical removal is done by filtration and sedimentation. जो तो floating debris है, floating debris ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ water bottles ਨੇ, plastic ਨੇ, ਉਹਨੂੰ filter ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੁਕੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ. ਸੁਕੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਆ. ਗ੍ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੋਇਲ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਪੈਬਲਸ, ਰੋੜੇ ਆ ਗਏ. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਈ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ. ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਲੱਜ, ਸੌਰੀ ਸੋਲਿਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਟਮ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਲੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਨੇਟੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਐਫਲੂਐਂਟ. ਉਸ ਉੱਪਰਲੇ ਐਫਲੂਐਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫॉर ਸੈਕੰਡਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਮੂਵਲ, ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, और उन्होंने वीकेंड से जो नीचे रहंद खुंद रह जाती है प्राइमरी स्लज आ तो उन्होंने उत्थों रिमूव कर देते हैं. जोड़ा उपरला पानी आ वो हजे क्लीयर नहीं होया, उहदे विचों तां जस्ट हजे डर्ट निकली आ और वीकेंड से पैबल्स निकले आ और प्लास्टिक निकले आ. नाउ नेक्स्ट इट आल्सो कंटेन मैनी माइक्रोब्स. नाउ दिस एफलुएंट इज सेंट फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट. इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट एफलुएंट इज पासड इनटू लार्ज एरीएशन टैंक. ये जोड़ा एफलुएंट आ उन्होंने एक बड़े सारे टैंक च पा देंगे ने. एरीएशन मीन जिथे बहुत हवा जाए, बड़ा सारा टैंक वेयर एयर इज पंपड इनटू. जोड़ा खुला हो उपरों तो वो नीचे होर हवा पाते हैं. एयर इज पंपड इनटू, वो हवा पाई जाती है. उस हवा पाने दे नाल वट विल हैपन, इट विल फॉर्म फ्लॉक्स. वट आर फ्लॉक्स की होंगी है, जो बैक्टीरिया ते फंगस दोने ही उहदे ते बन जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं. जो बैक्टीरिया भी हो गया तो उत्ते फंगस भी लग गई, उन्होंने असीं फ्लॉक्स कहने हैं. फ्लॉक्स बन जाता है. हुण जो फ्लॉक्स बन गया तो उहदे विच जिहड़े बैक्टीरिया ने जो ज्यों ज्यों बैक्टीरिया ग्रो करनगे उन्हां दा नंबर वधूगा, दैट विल कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर. एयर पंप की जाती है तो एयर पंप नाल उत्थे फ्लॉक्स इनक्रीज होंदा. फ्लॉक्स दे विच बैक्टीरिया ने, दैट बैक्टीरिया फ्लॉक्स बैक्टीरिया ते फंगस दोनों चीज़ां ही ने, उन्होंने असी फ्लॉक्स बोलते हैं. इट आल्सो कंटेन एरोबिक बैक्टीरिया. एयर इज पंप मीनस एरोबिक बैक्टीरिया. दैट एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर. उस ऑर्गेनिक मैटर नूं खांदे आ एंड इट प्रोड्यूस BOD. वट इज BOD? BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. Now look at the book here. BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed.
if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria, जे बैक्टीरिया 1 लीटर पानी दे विच जिन्ना ऑर्गेनिक मैटर नू कंज्यूम करनगे खत्म करनगे उन्नी ही ऑक्सीजन जिन्नी ओनू खत्म करन दे लई ऑक्सीजन दी यूज़ किया गया आ ओनू असीं कहने आ BOD। जिन्नी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करनगे इहदी वैल्यू उन्नी ज़्यादा होनी आ। ओहदा मीनिंग यही आ कि वो वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड आ। ठीक आ। इफ द ग्रेटर BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज़ पोल्यूटिंग, उन्ना ही ज़्यादा वो पोल्यूटेड वाटर आ। फिर जो वो BOD घट जाती है वैन इट इज़ BOD रिड्यूस्ड होगी रिड्यूस्ड BOD तो उन्होंने नैक्सट जोड़ा थोड़े को उन्होंने अगले टैंक दे विच भेज दिता जाता है दैट इज़ कॉल्ड द सैटलिंग टैंक। हुण उस फ्लॉस नूं सैटलिंग BOD घटन ते सैटलिंग टैंक दे विच भेज दिता जाता है। इत्थे की हुंदा सैटल होना टिकना, फ्लॉक्स आर सैडिमेंटेड, जो फ्लॉक्स और नीचे बैठ जाता है दैट वी कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, उन्होंने असीं एक्टिवेटेड स्लज कहने आ। नाउ दिस एक्टिवेटेड स्लज हुण जिहड़ा सैटलिंग टैंक दे विच जिहड़ा चीज़ नीचे बैठ गई आ उन्होंने असीं एक्टिवेटेड स्लज कहने आ। उस एक्टिवेटेड स्लज तो थोड़ा जिहा पार्ट एज एन इनैकुलम, इनैकुलम का मतलब हुंदा जिवें तुसीं दुध दे विच दही पा के जाग लाउने हो दैट वी कॉल्ड इनैकुलम। उस एक्टिवेटेड स्लज नूं एज एन इनैकुलम सम पार्ट ऑफ इट इज़ एडेड इनटू अगेन लेयर एरीएशन टैंक ताकि उहदे विच फिर मुड़ के साडे कोले फ्लॉक्स बन जाए। ये ना होवे कि फ्लॉक्स सारी खत्म हो जाए फिर थोड़ा जिहा वापस उहदे च पा दिंदे आ कि फ्लॉक्स दोबारे बनूगी तां ही वो BOD घट करू ऑर्गेनिक मैटर नूं कंज्यूम करूगी। जदों ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गया तो साडा वाटर क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ दिस फ्लॉक्स जो रिमूव होगी जोड़ा साडे कोल सैटलिंग टैंक च मटीरियल है दैट इज सेंट टू एनदर एनरोबिक स्लज डाइजैस्टर जिन्हों असी अगे एनरोबिक डाइजैस्टर स्लज दे विच भेज दिंदे हां। हाँ रिमेनिंग पार्ट एक्टिवेटेड स्लज तो बाद जोड़ा रिमेनिंग पार्ट है हियर आई हैव राइट डाउन एक्टिवेटेड स्लज दैट इज रॉन्ग रिमेनिंग पार्ट ओके रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट स्लज वो स्लज का जो बचा हुआ पार्ट आ उन्होंने असी अगे भेज दें नैक्सट टैंक दैट इज़ एनएरोबिक स्लज डाइजैस्टर टैंक। एनएरोबिक मीनस ये जोड़ा टैंक हो उहदे विच एनएरोबिक बैक्टीरिया होणगे। हियर एनएरोबिक बैक्टीरिया दैट विल डू दैट विल डाइजैस्ट द एरोबिक बैक्टीरिया ते फंगस जिहड़ी फ्लॉक्स इत्थों बच के आ गई उन्होंने खा जाते आ। मतलब कुछ तो सैटलिंग टैंक च नीचे बैठ गई जिन्होंने तुसी एक्टिवेटेड स्लज कहता पर जिहड़ी अगे बच के आ गई उन्होंने ये एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजैस्ट कर दिया। जदों ये डाइजैस्ट कर दिया एट द सेम टाइम दे प्रोड्यूस गैसेस किहड़ियां गैसेस लाइक मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस मीथेन गैस इज यूज एज बायोगैस जिवें अपने घर जिहड़े गोबर गैस लगे होने उत्थे भी यही गैस बनती है मीथेन उन्होंने बायोगैस के तौर पर यूज़ कर लिया जाता है। तो नाउ जोड़ा हुण तुहाडे कोले वाटर रह गया जिहदे विच गैसेस भी निकल गईयां ते जिहदे विच उहने तुहाडे कोले बैक्टीरिया ते एरोबिक बैक्टीरिया ते फंगस भी एनारोबिक बैक्टीरिया ने खा ले। हुण जिहड़ा तुहाडे कोले वाटर आ क्लीन आ दिस वाटर इज़ रिलीजड इनटू नैचुरल वाटर बॉडीज़ उन्होंने नैचुरल वाटर बॉडीज़ च रिलीज़ कर दिंदे आ।